in such a depressed phase. Every evening I would think the world is closing up on me. Every morning I would wake up with crippling anxiety, not knowing कि आज के दिन मुझे कैसा फील होगा, क्या मैं करूँगी. लोग उस टाइम बहुत बोलते हैं stay strong and you know time will heal everything. तो दो ही top colleges थे, LSE and King's College. I always kept a pepper spray with me. हमें बाहर तो पढ़ना है, but is it safe कि मैं study abroad करूँगी? वो टाइम अगर आ चुका है, make sure you are. My mother was a single mother and I was the only child. तो वो जो एक bond होता है between a single mother, the only child, आप एक दूसरे के लिए हो और आप inseparable होते हो. So obviously when I wanted to study abroad, ये मेरे को thought आया जब मैं 11th grade में थी स्कूल के. I used to watch a lot of Hollywood movies और मुझे लगता था कि मेरा भी किसी दिन ऐसे farewell होगा, graduation ceremony होएगी where I'm wearing a gown, I'm wearing the robe and I'm wearing the hat और मैं hat उड़ा रही हूँ. Princess Diaries and all of these movies देख देख के मैं इतनी inspire होती थी कि मुझे भी ऐसे ही करना है. स्कूल के बोर्ड्स हुए, लास्ट बोर्ड एग्जाम से पहले I posted my first YouTube video. अंदर से I don't know why I was so excited to do it. My mom was like, if you're confident, you've studied, you've done your bit, film कर लो video, क्या हो जाएगा? So that's when I filmed my first video, edited it the same day, posted it on YouTube. अब करते करते एग्ज़ाम हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, 3 साल कैसे निकल गए आई हैव नो आइडिया, बट आई केप्ट ऑन पोस्टिंग वीडियोज़ एवरी वीक. In fact, 2 videos a week at that time. So by the time I was done with college, I had already started earning. I had already saved up enough कि अब जो वो मास्टर्स की जर्नी आने वाली थी वो मैं खुद स्पॉन्सर कर पाती. Even though my mom had everything sorted for me already, सब कुछ already in place था before I could even say कि मुझे खुद स्पॉन्सर करना है. I felt like if there's anything जो उन्होंने मुझे सिखाया है, the most important thing has been कि आप independent हो, आप self sufficient हो and you prove your mark to the world. मास्टर्स के लिए अप्लाई करते टाइम द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न वाज कि आपकी फैमिली स्पेशली बीइंग अ सिंगल चाइल्ड बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने वाली है. कैसे जाएगा मेरा बच्चा, कैसे खाना खाएगा, क्या करेगा वहाँ पे. सो यू नीड एन आउटसाइड फोर्स टू टेल यू कि आप कर लोगे, यू शुड गो अब्रॉड एंड डू दिस. माई नानी वाज लाइक आई हैव गिवन यू द विंग्स टू डू दिस, यू नीड टू गिव हर द विंग्स टू फ्लाई एज वेल. माई मॉम टुक इट टू हार्ट, शी टोल्ड मी यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बस एक चीज़ याद रखना, when you go abroad to study, make sure it is at a top university offering your particular course, the one that you want. Don't settle for less here. I started researching universities. I knew कि मेरे को फिल्मिंग पसंद है, मेरे को फोटोग्राफी पसंद है और मुझे कैमरा के सामने बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई वाज लाइक एक काम करती हूँ, ग्लोबल मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, उस टाइम मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर कोर्सेज. तो तभी से मेरे को बाहर पढ़ने जाना था. आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड दैट वर ऑफरिंग जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन कोर्सेज. एंड दिस कोर्स आई सॉ गूगल पे बहुत सारे आते हैं ऑप्शन. सो आई सॉ दिस कोर्स विच एट ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्रीज एट किंग्स कॉलेज लंडन. द रीज़न आई चोज द UK वॉज बिकॉज वहाँ पे 1 साल का मास्टर्स होता है कंपेयर टू द US जहाँ 2 साल का होता है. सो फॉर मी इट वॉज ऑलवेज US और UK. And definitely UK का the cultural scenario, the environment, the multicultural scenario, the architecture, the history, all of it really had me very mesmerized. So I was like, जाना तो मुझे UK ही है. And London because it is the capital, it is the hub of the media industry. मुझे शुरू से पढ़ना मीडिया ही था. So I thought London is going to be the best place for that. And वहाँ पे भी 2 ही मेरे top colleges थे. I applied to several others. Those were safety options. But 2 ही top colleges थे, LSE and King's College. And King's had my exact course, which is why I chose that. I filled up the form, filled up the application form, I filled up the SOP. Thankfully, I got the offer letter. Now, this was in Feb of 2021. I got it late at night. रात को, I think 10 या 11 बजे I got the offer letter. I got it on mail. And I remember I ran to my grandparents' room. I ran to my mom. She was sitting at my home office में. I ran to her and I told her, मम्मा मेरा एडमिशन हो गया है. उस टाइम आई रिमेंबर हाउ शी लुक्ड एट मी, शी वाज स्पीचलेस. उनके बस आंखों में आई कुड सी कि देयर सो मच प्राइड, देयर सो मच हैप्पीनेस दैट शी इज डन इट. मैंने कहा था अच्छे कॉलेज में जाना है, शी इज प्रूव्ड अ पॉइंट एंड शी विल बी गोइंग देयर. अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये है फेब 2021 की, जब मैंने जाके ऑफर लेटर दिखाया. एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड. बट ऑल्सो वो ईयर ऐसा था जब कोरोना, जब कोविड वाज एट इट्स पीक. वी हैड द सेकेंड वेव जो कि मई में आया था. एंड सो उस टाइम भी पहले भी केसेस तो चल ही रहे थे. सो माई फैमिली इवन दो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर स्टिल अनसर्टन कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कोविड इज स्प्रेडिंग यहाँ भी वहाँ पे भी. उस टाइम भी माई मॉम टोल्ड मी कि अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे, टेक योर प्रिकॉशंस बट मेक श्योर यू टेक द लीप ऑफ फेथ एंड यू गो. करते करते मई आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली माई मॉम ऑल्सो गॉट कोविड. हम सभी को घर में हुआ था. वी वर, a lot of us were also admitted to the hospital.
एंड जितना भी हम कर सकते थे वी डिड. अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द पॉइंट वेयर वी लॉस्ट मॉम, एंड it was a very shocking time for all of us. It was a very shocking time for me, my grandparents especially. And even, I mean, till date, I don't think I have spoken about this. I don't think I don't think it's ever been talked about. But us time there were so many people who were losing their relatives, their family members, left, right, and center. And itne sare log, so many people were messaging me saying, आप प्लीज़ हमें बताओ हाउ आर यू डीलिंग विद दिस, बिकॉज आई डिड मेंशन ऑन माय स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम. मैंने एक दो जगह बताया था, बिकॉज सब पूछते हैं उस टाइम की ठीक है कि नहीं, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है. तो आई डिड मेंशन कि यू नो वट एवर हैपेंड इट हैज़ हैपेंड. एंड उस टाइम सो मेनी पीपल आस्क्ड मी आप कैसे डील कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डीलिंग विद इट. एंड आई हैड नो आंसर बिकॉज आई माई सेल्फ डिडंट नो एट द टाइम व्हाट आई एम डूइंग टू डील विद इट. मैं कुछ भी नहीं कर रही थी. लोग उस टाइम बहुत बोलते हैं स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू नो टाइम विल हील एवरीथिंग, बट कोई नहीं बताता है स्ट्रॉन्ग कैसे बने, कितना टाइम लगेगा टू हील एवरीथिंग. तो मैं लोगों को क्या बताती आगे. बट नाउ दैट आई डू हैव अ कपल ऑफ आंसर्स, आई थिंक अगर ये वीडियो देख के किसी को भी लग रहा है, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट फेज से जा रहा है, if anybody can feel कि ठीक है, you know, if she can do it so can I, it'll be, everything will be worth it in that case. So when all of this happened, it was the biggest shock of my life. अभी तक तो the whole excitement was कि बाहर जाएं कि ना जाएं, जाने के लिए भी इतना मन कर रहा था. The whole question was कि अब क्या करेंगे. But अब जब ये incident हो गया, everything changed. I didn't know what to do. My grandparents didn't know what to do. Extended family, friends, किसी को भी कुछ नहीं पता था. And I was in such a depressed phase. Every evening I would think the world is closing up on me. Every morning I would wake up with crippling anxiety, not knowing कि आज के दिन मुझे कैसा feel होगा, क्या मैं करूँगी. वो phase बहुत difficult होता है. It's I can say all of this in one flow right now because it's been a while and I've sort of built my life around it. But उस time जब आप उस phase में होते हो, it is the toughest phase of your life. And not just this, लोगों की लाइफ में कितना कुछ होता है, you know, a lot of people lost both parents, लोगों की families पूरी ही चली गई. So I was like, ठीक है, जो हुआ हुआ. Slowly and gradually I started coming out of it. I started building my life up again. That's when my grandparents told me, get back to work. कब तक घर पे ऐसे बैठोगे, ठीक है, it's happened. Do it, whatever you're doing, do it with the intention कि मम्मा खुश होंगी वो देख के. Your mom will be proud of you for doing this. So slowly and gradually, I picked myself up again, and हर चीज़ मैं used to think, ठीक है, whatever I'm doing, I'm making her proud in this. And then as we came closer to the date of leaving for the UK, the question came कि अब जाएगी भी कि नहीं सना. My family members, everybody, extended family, relatives, friends, सब आके यही पूछ रहे थे, क्या सोचा, जाओगे कि नहीं जाओगे. मेरे मेरे से ही नहीं, even from my grandparents, you know, they were asking the same question, what next, is she going to go? Nobody had the answer. Then one day my grandmom came to me and she said, Sana, mama ke liye से ही चली जा. She wanted this for you, you wanted this for yourself. Do it, make her proud. उसी time I was talking to my friend as well. And my friend told me, जो जो आंटी को पता था, at least वो सब तो कर. That really pushed me. What my nani said, what my nanu said, my friends said, that really hit me. And I was like, बात तो सही है. She knew about this. उतना तो मुझे करना चाहिए जितना उनको मैंने बताया था, जितना वो सुन के खुश थी. That expression that she had when I showed her the offer letter, it stayed in my mind. जब तक ये conversation चल रही थी, जाना है नहीं जाना, it was just that one expression with her eyes filled with hope, filled with pride कि my daughter is going to her dream university. So I packed my bags. I got a lot of dehydrated food packets made for myself because उस time मुझे खाने का ख भी नहीं आता था बनाना. And we end up in London. लंदन में पहुंचते ही दैट वाज अगेन द कोविड टाइम गोइंग ऑन. वी हैड अ क्वारंटीन, एवरीथिंग एल्स. इतने टेस्ट कराने पड़े, इतना प्रिकॉशंस लेनी पड़ी, बट ऑल सेड एंड डन, इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. वहाँ जाते ही माई कॉलेज वॉज द मोस्ट वेलकमिंग कॉलेज, द मोस्ट सपोर्टिव कॉलेज. दे वर सो प्रो स्टूडेंट, विच आई फील इज़ समथिंग जो बहुत कॉलेजेस यहाँ पे नहीं करते हैं. वो अपने एडमिन में ही या अपने टीचर्स के लिए काफ़ी प्रो होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टूडेंट्स, जो वो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, वेल बीइंग, स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ, वो सब इतना ध्यान में रखते हैं यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड. तो आई वाज शॉक्ड टू सी दिस. आई वाज लाइक, दिस इज सच अ स्टार्क डिफरेंस. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट इन इंडिया.
एंड जस्ट द फैक्ट दैट कॉलेज में आपको फ्री थेरेपी मिल रही है, ये कहाँ होता है? आई सेट अप माई इंटायर रूम, जो इतने टाइम से मैं वीडियोस देख रही थी, रूम टूर जो मैं इतने टाइम से देख रही थी, डेली रूटीन कैसे क्या लोग करते हैं व्हेन दे आर स्टडीइंग अब्रॉड। आई सेट माई रूम अप इन द मोस्ट परफेक्ट सेंस जो मैं चाहती थी। दैट वाज माई ड्रीम रूम। इट वाज अ स्मॉल रूम बट आई सेट इट अप इन माई वे। देन आई मेड श्योर माई रूटीन इज सेट इन द perfect way. I went to college every single day and I did my classes. I went traveling with my friends. तो वहाँ जाके रूटीन बहुत ही अच्छे से आई मेड श्योर दैट आई एम फॉर्मिंग। अब कुछ चीज़ें जो वहाँ पे फील होती हैं जाते ही, सितंबर में मोस्ट बैचेस स्टार्ट, नवंबर में दिवाली आ जाती है, दैट इज़ अक्टूबर नवंबर टाइम। एंड द बिगेस्ट हार्डशिप दैट आई फेस देयर, आई स्टिल से दिस व्हेनेवर समबडी आस्क्स, आई से सबसे बड़ी हार्डशिप होती है आपको लोनलीनेस और होम सिकनेस हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग टू फंक्शंस, दिवाली एंड योर बर्थडे। दिवाली पे इसलिए बिकॉज़ आप यहाँ पे देखते हो सारे फ्रेंड्स दिवाली मना रहे हैं, सब फोटोज़ ले रहे हैं, डाल रहे हैं, तो डेफिनिटली यू फील लाइक आई विश आई वाज़ देयर विद देम। एंड जस्ट बिकॉज़ वहाँ जाते ही ये ओकेजन आ जाता है, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू प्लान इट आउट। सो दिवाली वाज़ वन सच टाइम व्हेन आई वाज़ रियली डाउन द डम्प्स। एंड देन ऑफ कोर्स माय बर्थडे, स्पेशली बिकॉज़ हर साल बर्थडे पे जो आपका बर्थ गिवर होते हैं वो आपके साथ होते हैं। सो माय मदर वाज़ ऑब्वियसली यू नो इफ बिफोर दैट एवरी सिंगल ईयर शी वाज़ विद मी बैक हियर इन दिल्ली। एंड वहाँ जाते ही आई वाज़ ऑल अलोन। बर्थडे पे आई हैड नो आइडिया मुझे करना भी क्या है। व्हाटएवर आई हैड सेव्ड अप अंटिल माय फाइनल ईयर इन अंडरग्रेड, I made sure that I used that amount to spend in London on my fees, tuition fees, on rent and on travel. I made sure I'm living by those words and I made sure जो भी मैं amount spend कर रही हूँ एक budget में हो, every month I'm not over exceeding my budget. And if you plan well, ये बहुत easy है करना। बहुत लोग कहते हैं London is expensive, studying abroad is expensive. होता भी है, बट अगर आप प्लान करें, अगर आप बजट करें, इट इज़ नॉट दैट एक्सट्रीम। बहुत सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हो, थिंग्स लाइक रेल कार्ड जो स्टूडेंट्स के लिए बना है, थिंग्स लाइक शॉपिंग डिस्काउंट, स्टूडेंट डिस्काउंट्स, रेस्टोरेंट्स पे डिस्काउंट्स, इतने सारे डिस्काउंट्स आर देयर फॉर चिल्ड्रन, फॉर स्टूडेंट्स। सो डेफिनिटली मेक द मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई ऑलवेज टेल जो भी मेरे बाद भी गए हैं, आई टेल देम सबसे पहले जाते ही ये सब चीज़ों के लिए स्टार्ट अप्लाइंग। आप ऑफ पीक टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको 30% ऑफ ट्रैवल पे ही मिल जाता है। सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट एडेड अप। बहुत लोग ये चीज़ें नहीं भी करते और फिर वही हैं जो बोलते हैं कि इतने पैसे लग गए, क्या करें। व्हेन यू स्टडी देयर, योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एज आई सेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रो स्टूडेंट, तो वो आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी देंगे। जब आप जाओगे, इतने इवेंट्स होंगे, इतने वेलकम वीक्स होंगे, इतनी सारी चीज़ें, इतने रिसोर्सेज आपको फ्री में मिलते हैं। वन सच थिंग वाज द जिम मेंबरशिप। अब इट जस्ट सो हैपेंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी बॉट हर जिम मेंबरशिप फ्रॉम अनदर जिम जो अकोमोडेशन के पास था, बट इट वाजंट इन कॉलेज। And I thought if I have the access to the college gym, why not make the most of it? तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं which are smart decisions. आपको अगर free membership मिल ही रही है कहीं की, you make the most of it, you use that gym. Why do you want to spend on another gym which is closer to your accommodation but आप college भी तो रोज जा ही रहे हो? छोटी छोटी चीज़ें but they make a difference. Another question that I was getting very often is हमें बाहर तो पढ़ना है but is it safe? हमने सुना है बहुत सारे crimes होते हैं, XYZ ये वो होता है। आई फील पर्सनली लंदन में जो मेरा एक्सपीरियंस था वॉज डेफिनेटली सेफ़र दैन दिल्ली। मैंने लंदन में अकेले ट्यूब में भी ट्रैवल किया है, यहाँ मैं आज तक सोच भी नहीं सकती खाली ट्यूब में ट्रैवल करने का। मैंने वहाँ पे 3 बजे कैब भी ली है, कुछ भी नहीं हुआ। यू कैन कॉल इट लक, आई वुड चूज़ टू बिलीव वो सिटी सेफ़ है। ना मैंने कभी खुद रेसिज्म एक्सपीरियंस किया है और ना ही मेरे फ्रेंड्स ने टिल डेट। I can't say for other parts of the UK, but at least for London, I did not experience any such thing, and I definitely think बहुत safe जगह है to stay. Of course, थोड़े precautions हैं जो आपको खुद भी लेने पड़ते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वहाँ पे भी हो सकती हैं। You can't say for sure कि वहाँ बिल्कुल कोई crime नहीं है और ना आप किसी और जगह के बारे में ये कह सकते हो। So for me, I always kept a pepper spray with me. यूज़ कभी नहीं हुआ लेकिन रखा हमेशा था। जब आप वहाँ पे होते हो, आपके पास 1 साल होता है टू अचीव ऑल ऑफ योर ड्रीम्स, टू अचीव ऑल ऑफ योर गोल्स, जो भी आपको वहाँ पे करना है। वो 1 ईयर यू हैव अ टाइम फ्रेम, एंड व्हेन यू हैव अ टाइम फ्रेम अटैच्ड टू समथिंग, यू वांट टू मेक श्योर आप मैक्सिमाइज कर रहे हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो। 1 साल के बाद जा तो सकते हो वापस, बट नॉट इन द सेम वे जैसा अभी आप वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो योर स्टूडेंट लाइफ। सो आई मेड श्योर जितनी भी एक्टिविटीज़ में मैं एनरोल कर पाऊँ वो मैंने किया। अब अगर कोई अच्छा लग रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है अच्छे दिखने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए उसको कैरी करने के लिए। एंड आई थॉट ये कोई बात कर ही नहीं रहा है इंडिया में, सब दिखा रहे हैं आप ये खरीद सकते हो, आप वो खरीद सकते हो, आप ऐसे इस कलर का आउटफिट पहन सकते हो, ये वो कर सकते हो, ये ज्वेलरी पहनो। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि खड़े कैसे हों अच्छे से, बात कैसे करें, इम्पैक्ट कैसे बनाएं।
That is when I got the idea कि मुझे book लिखनी है, which I wrote after coming back here. It's called the Glow Up Guide, and now we're working on a video course called the Glow Up Academy as well. जब वापस आने का टाइम हो रहा था लंदन से, a lot of people asked me, आप वापस क्यों आ रहे हो? वहीं रह लो, लोग तो मरते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, and you're coming back. How foolish. I didn't have a clear answer to that, but I told them there is something in my heart that says यहाँ कर लिया जो करना था. I want to go back to India and I want to give back. My idea was कि मैं book लिखूंगी, मैं course बनाऊंगी. I will help people feel more confident. I will help people create an impact that they want to create. It's not just going to be fashion. It's not just going to be makeup. It's going to be more than that. Because of which when I came here, I knew मेरे पास यहाँ पे resources हैं. I knew किन से बात करना है मुझे, किन से deal करना है मुझे, in what way I want to shape my professional journey moving ahead. So I came back here and I put all of my resources to use. When you're at that junction जहाँ पे it's now or never, या तो अब मास्टर्स के लिए जाओगे या अब बिल्कुल ही नहीं जाओगे, या तो अब वो लीप ऑफ फेथ लोगे या बिल्कुल ही नहीं लोगे. दैट्स व्हेन यू एंड अप टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ. आप सोच सकते हो करूँगी नहीं करूँगी, बट जब उस चीज़ का टाइम आता है, या तो आप कर रहे हो या आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो उस चीज़ को. इट्स नाउ और नेवर. That's when you have to take that step. You have to take that leap of faith. And so if you've been thinking, मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगी, मैं अंडरग्रेड के लिए जाऊंगी बाहर पढ़ने, मैं स्टडी अब्रॉड करूंगी, वो टाइम अगर आ चुका है, मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट स्टेप बिकॉज इट विल चेंज यू एज अ पर्सन. कोई नहीं आपको इन वर्ड्स एक्सप्लेन कर सकता. आप वापस आओगे तो आप कैसे होगे. मैंने बहुत लोगों से पूछा था व्हेन आई वाज गोइंग, कि जो आ चुके थे वापस, कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी. सब आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, पर जब आप जाओगे, यू विल feel it within yourself. You will come back as a changed person. And आप भी मेरी तरह बाद में अपने जूनियर्स को बताओगे कि मैं बता नहीं सकती exactly क्या change हुआ है, लेकिन feels like पूरी दुनिया ही change हो गई है. You will come back a changed person. You will learn so much. You will learn आप अपने लिए कैसे responsible हो सकते हैं, prioritize कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, बजट मैनेज कैसे कर सकते हैं, खाना पीना कुकिंग सब आपको वो एक साल सिखाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनना सिखाता है. इट्स अ फनी स्टोरी, बट माई मॉम वॉज हियर इन द ईयर 2019 स्टैंडिंग ऑन द सेम स्टेज एंड टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, and I was sitting in the audience. I was making videos and taking photos of her. It feels like a full circle today. I am here talking about mom and thanking mom, and I definitely feel I have made her proud, and I hope wherever she is smiling, thinking कि हाँ इसने कर तो दिया ही है. And I hope that I have also made my community proud, जो मेरे को audience इतना support करती है. I hope I have lived up to their expectation, and I hope I continue doing that as well.